Hello, I'm Dr. Shivan Chaudhary. In my first attempt in the UPSC CSE prelims, I scored 115 marks. That's 28 marks above the cutoff. Now, how did I manage that? To ensure that, there were a few principles that I always followed during my prep. In principles को follow करके I ensured that my preparation was always comprehensive but always relevant, structured and organized, and the results spoke for themselves. Now, when the prelims season is going to come up, all of us are going to shift towards prelims prep. What are these key principles that I must keep in mind before I think of preparing for prelims? And I always keep these principles in mind to ensure that my prelims preparation is smooth and it brings me the best possible results. Let's talk about that. Welcome to Clarity for UPSC. Now, this is my mark sheet of the first attempt. As you can see here, the marks I got were 115. In CSAT, I got 88, and the cutoff this year was 87 marks. So the GS marks, as you can see, are about 28 marks above the general category cutoff. Now, this was my first attempt. When you score high in the prelims and you score high above the prelims cutoff, इसके बहुत benefits होते हैं. सबसे पहले तो आपको पोस्ट प्रीलिम्स एंग्जाइटी नहीं होती. प्रीलिम्स के बाद और प्रीलिम्स के रिजल्ट आने में 2 से 3 हफ्ते का टाइम होता है. इस टाइम पे ऑलमोस्ट एवरीवन फेसेस एंग्जाइटी, बट इफ योर मार्क्स आर गुड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस इमीडिएटली. In 2025 the mains anyway is going to happen in August, so there's going to be a very less time between the prelims of 2025 and the mains of 2025. So it is important that we start preparing immediately, and scoring high will help us here. Secondly, अगर आप एक बार प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ढंग से करके अच्छे मार्क्स प्रीलिम्स में ले आते हो, in the next attempt also you can focus on the mains. For example, in my second attempt in 2022 I got selected. These are the marks I got. अब आपको लगेगा मेरे मार्क्स कम हुए हैं, but I studied for prelims merely for 1 month because I was sure that my prelims preparation is decent and I don't need to keep focusing on prelims and I can focus on mains constantly. That led me to getting selected in the 2022 attempt, and here the cutoff was 88 for the prelims and I still scored 20 marks above the cutoff merely by studying for 1 month. So prelims mein there is a method to this madness. If someone can study properly, they can score high. Now, what are the principles that I should keep in mind? और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, इसी से आपको रियलाइज होगा कि मोस्ट लोग ये काम नहीं करते. प्रिंसिपल 1, प्रीलिम्स नॉलेज का गेम है, एलिमिनेशन का गेम नहीं है. हम सबको लगता है कि एलिमिनेशन टेक्निक सीख लेते हैं बिकॉज एलिमिनेशन इज़ एन ईजी शॉर्टकट. आप देखोगे जो लोग एलिमिनेशन टेक्निक्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, दे आर स्टक इन दिस मार्क रेंज ऑफ 80 to 90 मार्क्स. एलिमिनेशन इज एक्चुअली नथिंग बट इंटेलिजेंट गैसिंग, राइट? इट डज नॉट इंक्रीज आर नॉलेज, इट इज़ मियरली इंटेलिजेंट गैसिंग. हम अच्छे से गैस कर रहे हैं एंड वी हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग टू द राइट आंसर, बट देर इज अ ह्यूज फील गुड फैक्टर because when we get something right, when we get a question right and we've actually not studied for it, it gives a feel good factor. On the flip side, if we invest in knowledge, if we read standard books, if we read the text that we are supposed to read, the knowledge can take our base scores up to 100 plus. अगर हम नॉलेज में इन्वेस्ट करेंगे rather than getting stuck in this 80 to 90 की रेंज, और जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो रहा है वो इस बात को अटेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में that almost everybody is stuck in this range. But with knowledge we can get to this range, and once we get to this range, elimination is still important, but elimination techniques हम क्यों यूज़ करेंगे? ताकि हमारी जो थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स होंगी, वहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसको ऑफसेट कर दे एलिमिनेशन. एलिमिनेशन कैन नॉट बी आर गो टू स्ट्रैटेजी. द ओनली स्ट्रैटेजी टू क्लियर प्रीलिम्स इज टू हैव गुड नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. सेकेंड प्रिंसिपल वहीं से कनेक्टेड, स्टैटिक कॉन्टेंट इज द किंग, क्वीन एंड रुक. इफ यूर अ चेस प्लेयर यू विल अंडरस्टैंड दिस रेफरेंस. स्टैटिक कंटेंट की अगर हम बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं अगर स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ा है, तो वो 2-3 कोचिंग के कंपाइलेशन बता देते हैं. ये भी फॉलो कर लेते हैं, दूसरी भी फॉलो कर लेते हैं, डेली करंट अफेयर्स भी कर लेते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं. बट अगर मैं उनसे पूछूं कि स्टैटिक में एक टॉपिक है एंशिएंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर, जिससे पता है कि क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसका पता चलता है कि एंशिएंट हिस्ट्री स्किप किया हुआ है, मिडीवल हिस्ट्री के लिए तो कोई किताब ही नहीं पढ़ी आज तक, राइट? स्टैटिक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक है. ये जो यहाँ पर ये जो इक्वेशन यहाँ पर बनाई हुई है, दैट स्टैटिक फर्स्ट, PYQ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद कहीं करंट अफेयर्स, एंड उसके बाद भी फिर भी टाइम बच जाए तो एनीथिंग एल्स. अगर आप 2024 का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, स्टैटिक एंड PYQ कंबाइंड
would give you 54 questions from standard books and PYQs, which were doable questions. These are 54 questions that you can actually do just by reading static content and PYQs properly. 54 doable questions means 108 marks were up for the grabs, right? कट ऑफ किसी भी हालत में 90-95 से ऊपर नहीं होने वाला. तो सिर्फ ये काम करके भी बात बन जाती, राइट? करंट अफेयर्स पे आते हैं. यहाँ पर ओवर फोकस नहीं करना है. किसी एक एनी वन आई एम रिपीटिंग, एनी वन कोचिंग ऑफ योर चॉइस, इनकी कंपाइलेशन पढ़ लेना. कोई भी कंपाइलेशन पढ़ लोगे जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, उस कंपाइलेशन में हार्डली 50-60% होंगे, एंड उसके बियॉन्ड जाना इज अ वेस्ट ऑफ योर एफर्ट. एंड एवरीथिंग एल्स दैट इज लेफ्ट इज वर्थलेस. एवरीथिंग एल्स में क्या इंक्लूडेड है? न्यूज़पेपर. आप न्यूज़पेपर पढ़ो and you try to revise the newspaper for the prelims, it is almost impossible. Because आप कितना रिवाइज कर लोगे? अगर 3 साल पहले हिंदू के आर्टिकल में कोई क्वेश्चन था आया भी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आप 2 साल का पूरा हिंदू बैठ के खुद रिवाइज कर सकते हो. और जो चीज़ें न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है वो एनीवे करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में होती हैं. सेकंड, एलिमिनेशन टेक्निक्स. ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द वर्थलेसनेस ऑफ दिस. एंड 2023 में हमें पता है यूपीएससी ने क्या किया. इन 2023 देयर वाज नॉट रियली अ स्कोप फॉर एलिमिनेशन एनीवे. देन 6th to 10th क्लास की एनसीईआरटीज. यार मान लो क्लास 7th की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आ गया, तो क्या अब आप सारी 6th to 10th की एनसीईआरटीज पढ़ने बैठ जाओगे? वी हैव टू पुट आवर एफर्ट ऑन थिंग्स वेयर वी विल गेट अ रिवॉर्ड, नॉट पुट आवर एफर्ट ऑन थिंग्स रैंडमली. तो एनसीईआरटीज ऑफ 6th to 10th आर समथिंग विच इज वेस्टफुल. एंड एनी अदर रैंडम कोचिंग सोर्सेज, दीज आर नॉट सपोज टू बी स्टडीड. सबसे पहले स्टैटिक कंटेंट एंड PYQs. इवन इफ यू डू दिस प्रॉपरली, यू हैव अ 90% चांस ऑफ मेकिंग इट. वन करंट अफेयर्स कोचिंग कंपाइलेशन ऑफ एनी कोचिंग दैट यू वांट, दैट्स इट. इतना ही है, बट ये आना चाहिए आपको. थर्ड प्रिंसिपल इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस. मैं आपको यहाँ सब्जेक्ट्स, कुछ येलो में सब्जेक्ट्स लिखें, कुछ ग्रीन में लिखें, और आप खुद मुझे बताना कि आपने कितना टाइम इन सब्जेक्ट्स पे स्पेंड किया है आज तक. पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन लोगों पे हम लगाते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ ली, अब जरा मैं शेखर बंदोपाध्याय भी उठा के देखूं. और करंट अफेयर्स भी इन्हीं चीज़ों की पढ़ रहे हैं. करंट अफेयर्स कंपाइलेशन स्टार्ट फ्रॉम पॉलिटी फॉर ऑलमोस्ट एवरी कोचिंग. दे विल स्टार्ट विद पॉलिटी. तो पॉलिटी में पहले हम लक्ष्मीकांत भी अच्छे से पढ़ेंगे, पॉलिटी के हम PYQs भी सारे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें वो सब्जेक्ट आता है. पॉलिटी से फिर हम करंट अफेयर्स भी पॉलिटी के ही पढ़ेंगे, टेस्ट भी पॉलिटी के ही लगाएंगे, बिकॉज फील गुड अच्छा लगता है कि देखो मुझे सब्जेक्ट आता है, मैं इसका टेस्ट लगा रहा हूँ. बट दिस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट हियर. अब आप बाकी 4 सब्जेक्ट देखो, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर. इन पे कितना टाइम लगाते हैं? इनको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं. वी इग्नोर दीज सब्जेक्ट्स. या तो साइंस एंड टेक जैसे सब्जेक्ट को हम सोचते हैं कि यार करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाओ, दैट्स इट, नथिंग मोर इज नीडेड. एंशिएंट मेडिवल में हम करंट अफेयर्स पढ़ते ही नहीं. एंड इनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वी नेवर ट्राई एंड बिल्ड द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. कैसे? मैं आपको एविडेंस देके दिखाता हूँ. इन द 2024 प्रीलिम्स, पॉलिटी से पूछे गए 17 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 18, इकोनॉमी से 14, मॉडर्न हिस्ट्री से 3, टोटल बने 52. इफ यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर टाइम हियर, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू 52 क्वेश्चंस. आप कहोगे नहीं सर, आई डोंट स्पेंड माई टाइम हियर, आई ऑल्सो रीड अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में से सिर्फ आए थे सिर्फ 7 क्वेश्चन. तो इफ वी ऐड, इट बिकम्स 52 + 7 इक्वल टू 59 क्वेश्चंस. 40% क्वेश्चंस, 41% क्वेश्चंस अभी आपने छुए भी नहीं हैं. The ignored subjects, science and tech, there were 10 questions. Environment, 17 questions. IR, 6 questions. Ancient medieval, 8 questions. ये subjects हम ignore कर रहे हैं. If here 50 questions are coming and if here 40 questions are coming, almost equal amount of time should ideally be spent in these two subjects. अब ठीक है, these subjects are foundational subjects, ये शुरू में पढ़ना ज़रूरी है, बट इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. These subjects also matter. Invest in time in these subjects because nobody else is reading these. Don't chase 15 out of 17 है आपके पॉलिटी में. Don't try to make this 17 out of 17. इसमें जो एफर्ट लगेगा, यहाँ जो मार्जिनल एफर्ट आपको लगेगा 15 out of 17 से 17 out of 17 जाने में, उससे बहुत ईजी है साइंस एंड टेक में 2 out of 10 से 5 out of 10 बनना. So focus on these subjects as well. इसी चीज से कनेक्टेड है प्रिंसिपल 4th. द वर्ड कट ऑफ इज अ मिथ. प्रीलिम्स का कट ऑफ जो होता है ये एक मिथ है.
ठीक है, क्यों मिथ है? कट ऑफ इज सिंपली द मार्क्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट। जैसे आप मान लो 2024 में फिल्म्स में 14,000 पीपल गॉट सिलेक्टेड टू राइट द मेंस। अब इसमें लेट से जनरल कैटेगरी के 7,000 लोग होंगे अप्रोक्सीमेटली। जो जनरल कैटेगरी में 7,000th पर्सन होगा, 7,000th पर्सन जो लास्ट पर्सन होगा जनरल कैटेगरी में हु वुड हैव बीन सिलेक्टेड टू राइट द मेंस, उसी के मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ बन जाएंगे, राइट? सो कट ऑफ इज नॉट एन आर्बिट्ररी फिगर. कट ऑफ इज डिसाइडेड बाय द मार्क्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु राइट्स द मेंस एग्जाम, राइट? अब जब प्रीलिम्स टफ आता है, 2023 में प्रीलिम्स वाज टफ, कट ऑफ बिकेम 75. 2024 में प्रीलिम्स वाज अ बिट इजियर. देख लेना आप 100% 75 से ऊपर कट ऑफ होगी, शुड बी क्लोज टू 85 और इवन मोर देन दैट, राइट? तो कट ऑफ वेरीज एज पर ह्यूमंस, इट इज़ नॉट एन आर्बिट्ररी फिगर. तो हमें क्या करना है प्रीलिम्स में? वी जस्ट हैव टू बी बेटर देन अदर्स. वी आर कंपीटिंग अगेंस्ट अदर्स एंड वी हैव टू बी बेटर देन अदर्स. अगर आप बाकी सारे प्रिंसिपल्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो एग्जामिन करो, व्हाट आर दीज अदर्स डूइंग? अदर्स आर फोकसिंग ऑन एलिमिनेशन, ये हमें नहीं करना, वी विल बिकम बेटर देन देम. अदर्स आर फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स, ये हमें नहीं करना, वी हैव टू फोकस ऑन स्टैटिक थिंग्स. And when we focus on static things, we have to read all subjects because others are ignoring these 4 major subjects जिनसे 40 questions आते हैं. We don't have to ignore them. We have to study all subjects. So the idea here is to become better than others and follow this principle. जो चीज़ हमें करनी है, things like static subjects, things like covering IR, ancient, medieval and science and tech, ये most लोग नहीं कर रहे. You do this and you gain a competitive advantage. Whenever you are preparing for prelims, ask yourself before making any decision, if I do this book, if I read this book, am I gaining enough of a competitive advantage that it will help me be better than the last selected person? If the answer is yes, only then read that book. Prelims is all about becoming better than others. Then, no shortcuts. Any subject you read, you will have to first understand its static concepts. Then you will have to add previous year questions. Then you will have to write tests. ठीक है? टेस्ट जो होते हैं they are not for knowledge. Tests are for testing you. तो टेस्ट सीरीज के आंसर से नोट्स बना के शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं. We must read the static concepts properly, solve every single previous year question from 2013 to 2024, 12 years, and then we should focus on tests. Only then should we be able to say that I have completed this subject. And we have to do this for every subject. जो 8 subject मैंने लिखे हैं plus current affairs, इन सब के लिए हमें ये काम करना है. Only then we can say that yes, we have completed our preparation of prelims. If you complete your preparation like this, and if you keep these principles in mind, I am sure that you will be able to give a much better attempt than most of your competitors out there. Now, the final message. The preparation for prelims should not be a dogmatic preparation. What is the meaning of dogmatic preparation? Dogmatic meaning कि एक dogma है सबका, एक सबका method है कि ये method follow कर लो and this is what you have to do and everybody is following that same dogma, right? जैसे एक dogma है market में कि सबको PT 365 पढ़नी है. This is not how you can gain a competitive advantage. First you need to understand कि आपको कहाँ problem है. What are the issues that you are facing? Only when you know the issues that you are facing, you will be able to understand the various solutions to those issues. So on my YouTube channel, if you look at the last video that I have uploaded, I actually made a prelims analyzer sheet. Look at that video, use that prelims analyzer sheet, and then make that analysis for yourself. After you use that prelims analyzer sheet, it's available for free on my Telegram. You will understand that, okay, for geography, I need to solve more MCQs. For science and tech, I need to read a different source. And once you have made that strategy, only then you should start your prelims preparation. देखो, November is the last month when you can chill or prepare for mains. December से हमें transition करना पड़ेगा. January से everyone around you and everyone in this ecosystem is going to focus on prelims. It is important that we understand these principles and take these decisions now. Train your brain to at least accept the reality that is going to come in front of us in the next 2-3 months. अगर हम थोड़ा सा early start करेंगे, we will not have that pressure later. That's all I had to say. Hope you had a great Sunday. See you next time. Bye-bye.